हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी, एंड फॉर द फर्दर सब्सिक्वेंट टॉपिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लिखेंगे हेडिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Planck's quantum theory supports for the particle nature of light. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कहा था, मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कराता हूं आपका कि प्लैंक्स ने लाइट को पार्टिकल कहा और कहा कि light moves in the form of small quantums or packets called photons. So one photon is the minimum amount of the energy that can be transacted, that can be given or accepted of light. तो इसका जो मेन स्टेटमेंट था वो यही था कि atoms or molecules can absorb or emit energies not in the continuous manner but in the discrete quantities called photons. तो लिखेंगे according to Planck's quantum theory, atoms or molecules can absorb or emit energy only in discrete quantities called photon, the quantum of light. फोटॉन को बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज कॉल्ड फोटॉन एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर value, continuous value or amount. और मैनर। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कितनी भी एनर्जी ले सकता हो या दे सकता हो। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है तो वो अगर लाइट के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है तो इट हैज टू इमिट और एब्जॉर्ब ओनली इन द डिस्क्रीट क्वांटिटीज कॉल्ड फोटॉन्स. That means in the integral multiple of photons. That is called quantum of light. So photon is called quantum of light. Energy can be emitted or absorbed only in the form of 1 photon, 2 photon, 3 photon, or can be released 1 photon, 2 photon, 3 photon, but not the fractional value of photon. And that's why it is saying that energy cannot be continuously given in continuous values. It has to be given off or accepted only in discrete quantities, and that each discrete minimum quantity is called photon. According to Planck, suggested energy of each photon is directly proportional to frequency nu. तो अगर हम एनर्जी एक फोटॉन की बात करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं h एंड न्यू, वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.625 nearly into 10 to the power minus 34 joule second in SI unit. So this is called Planck's constant. So this is the energy of one photon. That means an object can emit 1 photon or 2 photon or 3 photons. That means in the integral multiple of energies of h nu.
but not the fractional value of h nu. This is the meaning of Planck's quantum theory. So photon is a kind of particle which has been transacted between the two bodies in emission and absorption of energy. तो दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको आप यूं भी लिख सकते हो h इंटू न्यू इज वॉट c अपॉन लैम्डा. तो एच सी अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हो इसको. तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन फॉर large number of photons emitted or absorbed by an object total energy is what? E is equal to, मान लो x number of photon थे into hc upon lambda, where x is an integer, पॉजिटिव इंटीजर. ऑब्वियसली नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता यहां पर. तो x is an integer, positive integer, which can be 1, 2, 3, 4 and so on. This indicates what? This indicates that energy can be emitted or absorbed in integral multiple of h nu, that is 1 h nu, 2 h nu, 50 h nu, etc., but not fractional multiple of h nu. इसका मतलब जो फॉर्मूला है, ये बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, x इंटू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, जो फॉर्मूला है, x हैज टू बी एन इंटीजर. That is the meaning of quantum. So quantum of light is what? One photon. And the energy of the photon depends on, or energy of the light depends on, frequency as per Planck's quantum theory. So this is the main difference between the Planck's quantum theory and Maxwell's wave theory. Maxwell's electromagnetic wave theory में Maxwell's ने क्या कहा? Energy is directly proportional to the square of amplitude. जबकि Planck's ने अपनी theory में क्या कहा? कि light moves in the form of particles and the energy is directly proportional to its frequency. So this is the very difference between the Planck's quantum theory and Maxwell's electromagnetic wave theory. तो this is the formula. इसको यूं भी कह सकते हो, x into hc upon lambda. So this integer is what? Number of photons. So this formula is quite useful in solving questions. यहीं पर हम एक बात कह भी सकते हैं, dual nature of light. Maxwell's की wave theory explains successfully the interference and diffraction. Planck's quantum theory successfully explains the blackbody radiation and photoelectric effect, and none of the theory explains all the 4 experimental facts. So it is accepted that light has got the dual nature, particle as well as wave nature. तो लिखो Maxwell's wave theory explains interference and diffraction. Whereas Planck's quantum theory successfully explains
black body radiation and photoelectric effect. क्या लिखा? डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या लिख रहे हैं? मैक्सवेल्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, वेयरएज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स black body radiation and photoelectric effect, and none of the theory explains all experimental facts. So light is said to possess dual nature. What dual nature? Particle as well as wave nature. तो ये था डुअल नेचर ऑफ लाइट। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे चलो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आईआईटी जेई की रिक्वायरमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन मान लो ये हो, 60 वाट बल्ब emits a monochromatic light of wavelength 6620 angstrom. Find number of photons or quantum of light are emitted in 1 minute. मान लो ये क्वेश्चन हो, ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं। कैसे अटैक करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं? लुक हियर, आपको पता है कि वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ मालूम है, अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की, तो मान लो फ्रीक्वेंसी तो मालूम ही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक तो हमें पावर दी है और टाइम दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखें, पावर इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी हो गई? विच इज इमिटेड इन 1 मिनट, पावर विच वन? 60 वाट इंटू हाउ मच टाइम? सेकेंड्स में लेना है, 1 मिनट है, 60 सेकेंड्स वुड बी इक्वल टू व्हाट? एनर्जी इज व्हाट? x इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। x इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। हमें x तो फाइंड आउट करना है। तो यू विल से दैट 60 इंटू 60 जूल एनर्जी, x नंबर ऑफ फोटॉन्स 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू c मीटर पर सेकेंड में ले लेंगे। एसआई यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन व्हाट इज लैम्डा गिवन इन द क्वेश्चन? 6620। बट मीटर में लेंगे, एंगस्ट्रॉम नहीं, क्योंकि सब कुछ एसआई कैलकुलेशन चल रही है, ये भी जूल में है। तो एनर्जी इन जूल मीन्स इन एसआई यूनिट, तो 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा देखो, ये 6.62 से आराम से कैंसिल हो रहा था, इसलिए हमने 6.625 की जगह क्या ले लिया? 6.62। इवन जरूरत पड़ने पर आप 6.6 भी ले सकते हो, आंसर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अप्रॉक्सीमेशन करने से अगर जरा बहुत 0.1, 0.2 या 1% तक का एरर आ रहा हो आंसर में, तो दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, योर कैलकुलेशंस बिकम सिंपल। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आईआईटी में आते हैं या नीट में आते हैं या एडवांस में भी आते हैं, तो उनमें आंसर्स के जो 4 ऑप्शंस होते हैं, दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम
इफ एट ऑल ए स्मॉल अप्रोक्सीमेशन इज डन इन कैलकुलेशंस। जरा सॉल्व करो इसको, तो क्या लिख दें इसको, कितनी बार इसको ऐसे लिख लो, तो 6 इंटू 6, 3 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20, 12 इंटू 10 टू द पावर कितना 2 विल बी इक्वल टू x। इसको 6.62 10 टू द पावर -7 ले लो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो गया 10 की पावर -7, 7 ऊपर गया 15, 15 अगर घटेगा इसमें से तो कितना बचा 10 की पावर -19, सो दैट इज 10 टू द पावर -19, और तो कुछ बचा ही नहीं। कैलकुलेशन एक बार थोड़ा चेक कर लेंगे, देखो इसको यहाँ लगा दिया डॉट, तो ये कितना हो गया 10 की पावर -7, दीज आर कैंसिल्ड आउट। कैलकुलेशंस तो आप स्टूडेंट्स स्वयं करें, कई बार मैं गलती कर सकता हूँ। आई एम हियर टू टीच यू द कॉन्सेप्ट्स, मैं लगभग हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। कैलकुलेशंस मेरी थोड़ी सी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपनी कैलकुलेशंस अपने हिसाब से करिए। 10 के पावर 15 हो गया, 39 4 में से घटाएंगे तो 19 बचा, तो x इज व्हाट, you will say that 1.2 into 10 to the power 20. That's it. This is the answer. These many number of photons are emitted in 1 minute from the bulb of power 60 watt. So like that questions can be solved. अब देखो यहाँ पे मैं एक बहुत ही important बात बता रहा हूँ. Now onwards we can follow this and this will save lot of time for you. क्या एक नोट करके लिखेंगे, आप फॉर्मूला यूज करते हो E is equal to hc upon lambda for energy of one photon. This is energy of one photon. Lambda is the wavelength. आप SI में कैलकुलेशंस करते हो तो एनर्जी लेगी होगी जूल में एंड लैम्डा विल बी इन मीटर, बट ध्यान दो whenever you are dealing mostly with the ultraviolet light or visible portion of the light, so mostly the most appropriate unit of the wavelength is angstrom or nanometer and energy in electron volt. So why not to find out the formula in terms of electron volt and all that. So let us find the value of hc. तो hc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, चलो एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में hc की वैल्यू फाइंड आउट करें, h इज व्हाट 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल। कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब बोलो क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये किसकी वैल्यू थी, h की वैल्यू, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया इंटू c, व्हाट स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 10, अब क्या बन गया ये एंगस्ट्रॉम पर सेकेंड। दिस इज सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज सिंपल यूनिट कन्वर्जन। Students should be strong in the unit conversion and using the dimensions. जरा इसको सॉल्व तो करो। So once you solve it 6.625 upon 1.6, अब जरा एक काम करें, ये तो हुआ 18 और ये 19 ऊपर गया, तो 18 प्लस 19 कितना हुआ 37, 37 में से 34 गया तो इंटू 10 की पावर 3, 37 में से 34 यस 10 की पावर 3 इंटू व्हाट एल्स 3, क्या बन गया ये, अब बन गया ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। वंस यू सॉल्व इट लगभग ये वैल्यू जो आती है 6400 के आसपास आ जाती है। 6.625 अपॉन 1.6 3.10 टू द पावर 18 10 के पावर 3 हो गया, तो 6620 अपॉन 16 12,400 के आसपास आ जाएगी ये, 6 दूनी 12 लगभग दुगने के आसपास, हाँ। सो दिस इज 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये है वैल्यू ऑफ hc इन दिस यूनिट। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा सा इसमें अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है, एग्जैक्टली 12,400 नहीं आता,
तो आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज द फॉर्मूला E is equal to 12,400 upon lambda. Now onwards you can use this formula. This is very useful, where lambda in angstrom, where energy in electron volt. So energy of the photon in electron volt and lambda or wavelength in angstrom. So you can use this formula. This is going to save a lot of time for you and a lot of calculations. Error के chances भी काफ़ी घट जाते हैं. So this is the ready-made formula you can use for solving questions. We'll take more questions on it in the next video lecture. That's it for now.